कृष्ण वासुदेवाय। गुरवः दण्डवत् प्रणामः। जय श्री राधे। प्रणमामि सर्वान् प्रणमामि। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माननीय गदाधर पंडा पंडा हरे जी से, कृष्णा। हरे कृष्ण हरे गदाधर कृष्ण। पंडा जी से निवेदन है वो अपना कार्यक्रम शुरू करें, उपक्रम शुरू करें। जय श्री राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Congratulations to venerable saints, academicians, Sanskrit scholars, connoisseurs of Harikatha of the Satra, lovers of Harikatha of the Satra. Respectful salutations to erudite Vaishnava scholars who have been disseminating devotional message of the Bhagavatam among us. श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम. This Kirtan chant is the composition of Prem Bhikkhu Maharaj. This Sri Ram Jai Ram, this Kirtan chant is the composition of Prem Bhikkhu Maharaj, an ardent Nepalese Ram Bhakta of highest order. He says Srimad Bhagavatam is a Kirtan Grantha. So Srimad Bhagavata Parayan or recitation for long hours is Kirtan itself or tantamount to Kirtan. Last evening Acharya Joykantji was telling Sadhya Priti Karo Ragah Sangita Abege Nana Rupe Mano Atindriya Dase Kare Vicharan. Thus says the Odia poet Radhanath Rai. The Odia couplet says, musical strains sublimates the mind. Music leads the mind to the unperceived region. If recited with the appropriate tone, it generates devotional sentiments. Emotional effusion automatically occurs. Listener's mind gets concentrated. Even it culminates in the attainment of samadhi. In some devotees, it arouses either one or all the ashtasattvic bhavas or sentiments. The sound waves emanating from the recitation stimulates the pituitary gland that regulates the activities of the brain. Listener's mental state suddenly undergoes total transformation. My dear brothers and mothers, one event I remember, Pandit Kelucharan Mahapatra, the famous exponent of Odissi dance, was presenting Odissi dance show in Washington, D.C., USA. That was sometime during the 1970s. It is so. A galaxy of connections of Indian art and music, including world famous musicians like Ustad Ali Khan, what I remember, were present as spectators. Dasavatar Stotros were being recited with the accompaniment of various instrumental music. Pandit Kelucharan Das was displaying the appearance of each avatar, namely Matsya, Kurma, Varaha, Nrsimha, etc., with all his impressive natural body movements, with exquisite gesture, posture, gesticulations. It was so fascinating that the learned spectators, overwhelmed with the emotional effusion, irresistibly went to the pandal and offered their pranams to the great exponent of performing arts, the world famous musician Ustad Ali Khan, who was present and who is probably a Sanai musician or so, could not resist his emotional upsurge and embrace Sri Mahapatra even during the performance on the pandal also, violating all norms of protocols. So this was reported to Indians by almost all the daily newspapers during 1970s or like that. So this is the classicism of Indian art and music we experience in various occasions. It has no parallel in the world. The origin of dance performance can be traced to Nataraj Krishna also. Similarly, the music of the Vedic chants, recitation of the bharshas of the Bhagavatam or Bhagavad Gita generates devotional sentiments. So, the devotional strains of the recitation of the bharshas of the Bhagavatam with a musical tone, the like of Avanindraji and Kali Prasad ji, thrilled my whole existence, body, mind, and soul.
This is the result of our association with the three devotees, scholars. They contribute much to our spiritual advancement. Everybody who have been listening to these talks of supreme love, the glories of the Lord Krishna, will eventually attain a love body, endowed with love mind, love eyes, love ears, love tongue, and whatnot. How is it so? The mind stuff would possess love thought. The eyes would radiate the light of love. The ears would hear the miraculous majesties of love. The tongues and other speech organs would be enchanted with the utterance of divine love talk, and thus the whole body would throb with the profusion of love, the prem bhakti. So last evening, the verses from 7 to 11 were discussed. Verse 7 to 11. 7 to 11. केचिद् वेणुनुपावयन्तु ध्मान्तः शृङ्गानिकेतनम् केचिद् भृङ्गे प्रगायन्तः कूजन्तः कुकिलैः परे विच्छायाभिप्रधावन्तु गच्छन्तः साधुवंशकैः बकैरुपविशन्तश्च नृत्यन्तश्च कलादिभिः विकर्षन्तः कीटबाला नारिहन्तश्च तैर्द्रुमान् विकुर्वन्तश्च तैसाकं प्लवन्तश्च पलाशिषु साकं भेकैर्विलङ्घन्तः सरित्प्रसव संप्लुतः विहसन्त प्रतीच्छाया सपन्तश्च प्रतिस्वनान् इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यङ्गतानं परदैवतेन मायासितानं नवतारकेण साकं बीजहृ कृतपुण्यपुञ्जाः. In these verses, verse 7 to 11, Sri Sukdev ji portrays covered by the various modes of plays they played with the Lord in the form of human child. Some of them played their flutes, and some also sounded their horn bugles. Some imitated the sounds of the bumblebees, Brahmari saha pragayantah. Some imitated the beautiful movements of swans. Some others imitated the dancing of peacocks. Some mimicked the monkeys. Some others jumped from one branch to another. Some boys went to the streams, jumped with the frogs. Some laughed, seeing their own reflections in the water. In this way, Srila Sukdev has offered his reflections. Ithang satang brahma sukhanabhutya dasyang gatanang paradaivateno maya sitanang nardarakeno sakang bijahru sukrusapunya punja. The Gopa boys who had attained the great merits as a consequence of their accumulated pious deeds were fortunate enough to play with Lord Krishna. That Krishna who appeared as the infinite Brahman to the enlightened ones, as the supreme God by the devotees, and as a mere human child to those in the grip of Maya. So now I request respected Acharya ji to start his discourses from the verse number 12, which reads, Jaspad pangsur bahujanma kutshato dhrutatmabhir yogibhi api alavya saeva jadrug visaya swayang stitah kingvarnyate dishtamato prajaukasam. And respected Acharya ji, Narottam ji is requested to start and proceed on from that verse what I read just now. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त
राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के सायंकालीन इस श्रीमद्भागवत कथा सत्र में उपस्थित समस्त वैष्णवजन, संतजन, विद्वज्जन, गुरुजन एवं श्रीमद्भागवत कथा रसपिपासु सुधीजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए हम आप सबके आशीर्वाद को लेते हुए भगवान की कथाओं को वर्णन करना चाहेंगे। जैसे हमारे प्रिय, हमारे हितैषी पंडा बाबू ने कहा कि भगवान के कीर्तन का क्या महत्व है, भगवान के नाम कीर्तन का, भगवान के गुण कीर्तन का, भगवान के लीलाओं के कीर्तन का क्या महत्व है, और चित्त कैसे अनायास ही भगवान के कथा में फंस जाता है, बंध जाता है, अर्थात वो संसार में नहीं भटकता है। और भगवान की कथा में जब हम लोगों का चित्त लग जाता है तो संसार की जो वेदना है, संसार की जो पीड़ा है, संसार का जो कष्ट है वो लघु हो जाता है, अर्थात वो हम लोगों को इतना परेशान नहीं करता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है प्रति बारंबार भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो आप सब संतजनों, सज्जनों की कृपा से हम लोग वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल तक तो कथा श्रीपाद जयकांत प्रभु जी अत्यंत सुललित ढंग से, अत्यंत माधुर्यपूर्ण शब्दों से, स्वरों से एवं अत्यंत शास्त्रीय विचारपूर्ण ढंग से वे प्रतिपादन कर रहे थे। जैसे पंडा बाबू ने कहा, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरबालकेन साकं बीजह्रुः कृतपुण्यपुञ्जाः। यह 11 नंबर का श्लोक है। तो श्री जयकांत प्रभु जी कुछ प्रसाद इस श्लोक का हमारे लिए छोड़ गए हैं। तो आप लोगों की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से उस प्रसाद का मैं सेवन करना चाहूँगा। फिर अगले श्लोक में हम लोग प्रवेश करेंगे। तो अभी जैसे आज कुछ हम लोगों के विभाग के छात्र इस कथा में जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा उनकी जानकारी के लिए भी थोड़ा सा मैं उपक्रम को 2-4 मिनट और बढ़ाना चाहूँगा। जैसे अभी हम भगवान श्री कृष्णचंद्र की, श्री नंदनंदन की बाल्य लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि भगवान की सबसे पहले अवतार तो मथुरा में हुआ, अर्थात वसुदेव महाराज जी के गृह में और नंद बाबा के गृह में। फिर वसुदेव महाराज जी अपने पुत्र को लेकर के नंद बाबा के यहाँ आए, तो वह गोकुल था। उस गोकुल में भगवान ने पूतनावध, सकट भंजन आदि लीला भगवान ने की, और गोकुल से चल करके भगवान वृंदावन आए हुए हैं।
तो अभी वृंदावन की लीला का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। तो गोकुल की लीला में जैसे हमारे प्रिय आचार्य श्री हरे कृष्ण प्रभु जी सुना रहे थे, श्री जीव गोस्वामी पाद के ग्रंथ के आधार पर, कि भगवान की जो गोकुल लीला है, नंद बाबा का जो पहला राजधानी थी, या जहाँ ये गोप लोग नंद बाबा के साथ जहाँ पहले निवास करते थे, जो गोकुल है, वहाँ भगवान की लीला 2 साल 3 मास तक चली। अर्थात 2 साल 3 मास 3 महीने के बाद भगवान वहाँ से वृंदावन में आ गए, एवं वृंदावन में आकर के भगवान ने वो सब लीलाएं की। तो गोकुल से यूँ आए, इसलिए आए कि गोकुल में अत्यंत उत्पात उत्पन्न हो रहा था, और वो सब भगवान का अहितकर था, अर्थात भगवान श्री कृष्णचंद्र का विघ्न करने के लिए या उनका वध करने के लिए ये समस्त चेष्टाएं राक्षसों के द्वारा हो रहा था। एवं अंत में वह जो यमलार्जुन था, 2 अर्जुन वृक्ष बड़े बड़े थे, वो भी गिर पड़े। इस सब कथा को हम लोग श्रवण कर चुके हैं। इस कथा को एकादश अध्याय में कहा गया था। तो एकादश अध्याय में ही यमलार्जुन का की लीला का कुछ अंश कहा गया था, और एकादश अध्याय में यही वर्णन किया गया था कि वहाँ उपनंद जो थे नंद बाबा के बड़े भाई, उनकी सलाह पर एवं सभी की सहमति पर तो समस्त गोकुलवासी ये सब ब्रज में आ गए, यानी वृंदावन में आ गए। और वृंदावन में आने से वृंदावन की शोभा को देख करके भगवान श्री नंदनंदन को एवं भगवान श्री बलराम को एवं अन्य अन्य समस्त सखाओं को अपार आनंद हुआ। अर्थात वृंदावन का दर्शन करके, वृंदावन की शोभा का दर्शन करके भगवान श्री कृष्णचंद्र एवं श्री बलराम के हृदय में अपार आनंद हुआ। तो यह लीला हुई भगवान का जब 2 साल 3 महीने का हुए थे। उसके बाद भगवान आकर के वृंदावन में पहले तो वत्सासुर का वध किए, और उसके बाद वत्सासुर का उसके बाद बकासुर का वध किए। तो एकादश अध्याय में वत्सासुर वध की लीला हुई है, एवं बकासुर वध की लीला भी हुई है। और वहाँ एक नई बात हुई कि भगवान वहाँ वत्सपाल हो गए, अर्थात गोकुल में उनको वत्स चराने का मौका नहीं था, या उनका उम्र भी इतना नहीं हुआ था, इतने बड़े नहीं हुए थे। लेकिन जब वृंदावन में आए तो उनको वत्स चराने का मौका मिला, अर्थात गुरुजनों के और जो अभिभावक जन हैं उनके संरक्षण में या उनके अनुमति लेकर के भगवान वत्स चारण करने लगे। तो उसी दिन से अर्थात वृंदावन आने के बाद ही भगवान वत्सपाल हुए। अब 12 अध्याय में, जिस अध्याय को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इसमें भगवान के शुरू से हम लोग ये श्रवण कर रहे हैं कि भगवान को एक दिन मन हुआ कि हम वन में भोजन करेंगे, अर्थात क्वचित वनासाय मनो दधत। तो इसका यह पता लगता है, अर्थात मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, देखिए भगवान जब गोपाल हुए, अर्थात जब बड़े बड़े गौओं को, गायों को चराने के लिए जाते थे, तो उस समय भगवान गोकुल में यानी गोचारण में संपूर्ण दिन अतिवाहित करते थे, सारा दिन अतिवाहित करते थे। कैसे? क्योंकि जैसे गोपी गीत में वर्णन है कि जब भगवान शाम को गोचारण के बाद वृंदावन वापस आते हैं या अपने घर वापस आते हैं, तब गोपियां भगवान के अलकावली मंडित मुख का दर्शन करके अत्यंत व्याकुल हो जाती थी, क्योंकि सारा दिन का विरह था। तो इसका यह मतलब हुआ कि भगवान जब गोचारण कर रहे थे
तो भगवान सारा दिन, पूरा दिन गोचारण कर रहे थे। तो उसका यह मतलब हुआ कि सुबह का जो भोजन है उसको घर में करके भगवान गो लेकर के निकलते थे, और मध्याह्न भोजन वहीं जंगल में करते थे, और फिर शाम को वापस आकर के रात को घर में भोजन करते थे। ये भगवान जो गोचारण के समय। लेकिन वत्सचारण के समय शायद ऐसी व्यवस्था नहीं थी। मैं कुछ अगर गलत कर रहा हूँ तो आप लोग रोकिएगा मुझे। मुझे लग रहा है जब वत्सचारण का समय था तो उस समय क्या करते थे भगवान, पूरा दिन वहाँ नहीं बिताते थे, क्योंकि बच्चे थे, अब अभी छोटे छोटे थे, तो सारा दिन वो जंगल में अतिवाहित नहीं करते थे। सुबह खा करके, सुबह भोजन करके भगवान एवं बाल सखा सब बछड़ों को लेकर के जाते थे, और जो मध्याह्न का समय जब तक होता था तब तो शायद वापस आ जाते थे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वापस आ जाते थे, इसलिए वनास करने का मौका भगवान को नहीं था। वनास का मतलब वन भोजन करने का मौका बच्चों को, भगवान के सखाओं को नहीं था। इसीलिए कहा गया क्वचित वनासाय मनोदरत, अर्थात भगवान ने विचार किया कि हमको तो घर में खिला पिला करके एवं भूषण आदि द्वारा विभूषित करके भेज देते हैं, तो हम वन में भोजन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमको वन में भोजन करना चाहिए। अर्थात वो मौका था, क्योंकि मध्याह्न में तो वापस आ जाना है, इसलिए सुबह का भोजन जो घर में होता था रोज, भगवान ने उस दिन मन बनाया। आज के दिन जिस दिन की चर्चा, जिस लीला की चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, उस दिन भगवान एवं समस्त सखाओं ने मन बनाया कि सुबह का भोजन हम लोग जंगल में ही करेंगे। तो इसलिए समस्त सखा एवं भगवान श्री नंदनंदन ये वन्य भोजन में अत्यंत आग्रही होकर के, अत्यंत उत्सुकता के साथ वन्य भोजन के लिए सकल तैयारी के साथ, समस्त प्रस्तुति के साथ गए हैं। और वहाँ क्या क्या लीलाएं हुई तो उसको तो हम लोग श्रवण कर रहे थे। मुष्णन्तोन्योन्य सिक्यादीन, अर्थात भगवान एवं बाल सखा जब जाते थे उनके पास उपकरण के नाम पर सुसिक बेत्र विषाण वेणवः होते थे। अर्थात सिक होता था, सिक्य होता था, बेत्र होता था, विषाण होता था और वेणु होता था। और इसी को फेंक करके, इसी को किसी की वेणु, किसी का बेत्र, किसी का सिक्य कोई चुरा लेता था और वो उसको दुखी होने देते थे। फिर जब वो अत्यंत दुखी होता था उसको वापस दे देते थे। इस तरह की चर्चा सुनते थे। वहाँ पर एक बात जीव गोस्वामी पाद और श्री चक्रवर्ती पाद के जैसे मुष्णन्तोन्योन्य सिक्यादीन, यहाँ हम लोग श्रीपाद जयकांत प्रभु जी से श्रवण कर रहे थे। जीव गोस्वामी पाद का अभिप्राय था कि सिक्यादीन, यहाँ सिक्यादीन में जो समास है वो अतत गुण संविज्ञान बहुब्रीहि है। अर्थात श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे थे कि कोई किसी को सिक्य को फेंक देता था, वेणु को फेंक देता था, यष्टि को फेंक देता था। तो श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे थे सिक्य को कैसे फेंकेगा, क्योंकि वो जो सिक्य है उसी में तो समस्त भोजन सामग्री लेकर के समस्त भगवान के सखागण एवं भगवान उसी में लेके जा रहे थे और सिक्य में ही रखा था, इसलिए सिक्य को नहीं फेंका जा सकता है। इसीलिए जीव गोस्वामी पाद ने सिक्यादीन में कहा था अतत गुण संविज्ञान बहुब्रीहि, अर्थात सिक्य को छोड़ करके बाकी जो चीज़ें हैं जैसे बेत्र, विषाण एवं वेणु, उन्हीं इन चीज़ों को, इन तीनों को फेंक करके बच्चे सब क्रीड़ा किया करते थे। किसी को दुखी करते थे, किसी को रुलाते थे, फिर ज़्यादा दुखी होता था तो उसको वापस दे देते थे। तो वन में इस तरह की, वृंदावन में इस तरह की लीला होती थी, भगवान करते थे। तो यहाँ पर लेकिन हमारे जो श्री चक्रवर्ती पाद हैं
उन्होंने बहुत अच्छा समाधान किया था। अर्थात जीव गोस्वामीपाद की यह जो व्याख्या कि सिक्के को नहीं फेंका करते थे, उसको छोड़ करके और दूसरे जो उपकरण थे उनको ही फेंकते थे, तो श्री चक्रवर्ती पाद यहाँ पर कहे थे। यद्यपि ये सब बात चर्चाएं हुई हैं, केवल एक बार याद दिलाने के लिए, और जो कुछ हम लोगों के छात्र हमारे विभाग के जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी के लिए भी थोड़ा सा मैं उस बात की चर्चा कर रहा हूँ। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे थे ना, सिक्ख्यादिन में अतद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि करने की जरूरत नहीं है। अर्थात सिक्के को भी फेंकते थे, अर्थात दूसरे के सिक्के को दूसरा चुरा लेता था और दूसरी जगह फेंक देता था, उसको जब वो पकड़ लेता था तो फिर वो दूसरी जगह पर फेंक देता था। इस तरह की क्रीड़ा भगवान कर रहे थे। तो यहाँ पर श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे थे कि गोप बालक एवं भगवान जो खाद्य सामग्री, जो भोज्य सामग्री लेकर के जंगल में गए थे, उस भोज्य सामग्री को मैयाओं ने इतने यत्न से और इतनी सावधानी से उसको बांध दिया था कि बच्चे जा कर के ही तुरंत सिक्के से उसको उतार लेते थे। तो उतार करके किसी वृक्ष के नीचे उसको रखते थे और झाड़ियों से उसको ढक देते थे, कोई पशुओं का कोई उपद्रव उस पर न हो। इसलिए सिक्के जो है वो खाली हो जाता था, उसको भी लोग फेंकते थे। तो इस तरह की बातें श्री जीव गोस्वामी पाद और श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि व्याख्याकार हैं और भगवान की लीलाओं को कौन आचार्य किस तरह से अनुभव करते हैं उस तरह से वो व्याख्या कर रहे थे। तो इस तरह की चर्चा हो रही थी। और उसके बाद कीसवालान आरोहंतः विकर्षंतः कीसवालान, यहाँ भी दो तरह की व्याख्याएं हैं। अर्थात कीस शब्द का अर्थ है मरकट, उनके जो बालक, उनको बच्चे खींच करके उनके गोद से, अर्थात जो मरकट स्त्री मरकट होती थी उनकी गोद से बच्चे मरकटों को खींच करके भगवान के सखा लोग उसको ले आते थे। एवं ये तो एक अर्थ था। और दूसरा भी अर्थ था कीसवालान, अर्थात जो मरकट हैं उनकी पुच्छ को पकड़ करके, उनके लांगुल को पकड़ करके खींच करके गोप बालक सब पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे एवं शाखाओं से ऊपर शाखा में, उससे ऊपर शाखा में जा करके क्रीड़ा करते थे। इस तरह की चर्चा हुई थी। और साकंग भेकैर विलंघंतः सरित प्रवर संप्लुताः, अर्थात जैसे मेढक जलाशय को छोटा छोटा जलाशय जो है उसको कूद जाता है, उसी तरह से भगवान के जो सखा हैं, भगवान हैं, ये सब मेढक की तरह कूदते थे एवं प्रतिच्छाया को देख करके, अर्थात अपनी प्रतिच्छवि को जल में देख करके हंसते थे एवं अपने प्रतिस्वन को, अर्थात उनके जो इको होता था, अर्थात उनकी जो आवाज़ की प्रतिध्वनि होती थी उसको वो चिढ़ाते थे। तो इस तरह से भगवान एवं भगवान के जो सखागण थे वो अत्यंत दिव्य लीला करके परम आनंद में अपना बाल्यकाल अतिवाहित करते थे। इसी को देख करके श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी महाराज जी को कहते हैं, इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरबालकेन सार्धं बिजह्रुः कृतपुण्यपुञ्जाः। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण सार्धं बिजह्रुः कृतपुण्यपुञ्जाः। अर्थात भगवान को देखने की दृष्टि सबकी अलग अलग होती है। अर्थात युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्णचंद्र को जैसे देखते थे, दुर्योधन उस तरह से नहीं देख पाता था। या विदुर जी महाराज भगवान को जैसा दर्शन करते थे, भगवान को जैसा समझ रहे थे, शकुनी उस तरह से नहीं समझ पा रहा था। ये प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि है
कि वो भगवान को किस रूप से, भगवान को किस तरह से उनका दर्शन करता है, उनके स्वरूप का अनुभव करता है, यह प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि भिन्न भिन्न होती है। तो उसी की चर्चा यहाँ है कि सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, इसका जो सामान्य अर्थ है उसको श्री जयकांत प्रभु जी बहुत अत्यंत ढंग से कल बता रहे थे, और श्री चक्रवर्ती पाद की इसके ऊपर जो सुंदर व्याख्या है उसका भी वे अर्धाधिक पाठ कर चुके थे, लेकिन जल्दीबाजी के कारण कुछ अंश बाकी रह गया था। तो आप सबके कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से श्री चक्रवर्ती पाद की जो व्याख्या है उसको एक बार मैं पढ़ना चाहूँगा और समझने की कोशिश करूँगा। अथ हाँ, श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे थे, एवं तेसाम क्रीड़ा निर्वर्ण्य, अर्थात भगवान की क्रीड़ा तो दिव्य है, बाल सखाओं के साथ उनकी जो बाल्य लीला है वो अपूर्व लीला है, देव दुर्लभ लीला है, बड़े बड़े योगी जनों को भी दुर्लभ लीला है। ऐसी लीलाओं का प्रदर्शन, ऐसी लीलाओं का आचरण भगवान कर रहे हैं। एवं तेसाम क्रीड़ा निर्वर्ण्य, अर्थात भगवान की क्रीड़ाओं की वर्णना करने के बाद ब्रजो कसाम इति उत्तर श्लोकोक्त्या तदादि ब्रजवासी मात्राणामेव सौभाग्यम सर्वेभ्यः एक एव सकाशात् अधिकत्वेन स्तौति। अर्थात भगवान जिन बाल सखाओं के साथ लीला कर रहे थे उनके सौभाग्य की तो कोई तुलना नहीं है, उनके सौभाग्य की वर्णना हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह केवल उन बाल सखाओं के साथ नहीं है, अर्थात जितने भी गोपवासी हैं, जितने भी ब्रजवासी हैं, जितने भी गोपियां हैं, सभी का भाग्य अतिशयित दिव्य है, अत्यंत परम भाग्य है, अत्यंत सौभाग्य है। इसकी बात इस श्लोक में कही जा रही है। केवल बच्चों का भाग्य की प्रशंसा नहीं की जाती है, समस्त ब्रजवासियों के भाग्य की प्रशंसा की जाती है, जो किसी न किसी तरह से भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान से प्रेम करते हैं एवं भगवान से समय कालातिपात करते हैं एवं भगवान को अपना मन प्राण दे करके भगवान से अपना संपर्क बनाए हुए हैं। तो कहते हैं तदादि ब्रजवासी मात्राणाम, अर्थात इन बच्चों से लेकर के बुढ़ों तक जितने भी हैं सबका सौभाग्य सर्वेभ्य एव सकाशाद अधिकम, अर्थात संसार में जितने भी प्राणी हैं और सभी के भाग्य से ब्रजवासियों का सौभाग्य अत्यंत दिव्य है, अत्यंत अतिशयित भाग्य है, अतिशायी भाग्य है। इस बात की चर्चा इस श्लोक में हो रही है। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं बिजर्षुः कृतपुण्यपुञ्जाः। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, अत्र जगति प्रायः त्रिविधा एव जनाः गण्यन्ते। संसार में तीन तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ज्ञानी होते हैं, कुछ लोग भक्त होते हैं, कुछ लोग कर्मी होते हैं। तत्र सताम, देखिए अब थोड़ा सा श्लोक को गंभीरता से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, अर्थात जो लोग सत्य हैं उनके लिए ये जो नंदनंदन है, ये जो यशोदानंदन है, कृष्ण हैं, ये क्या हैं ना, ये ब्रह्म सुखानुभूति हैं। अर्थात जो लोग सत्य हैं, सताम संतों के लिए अर्थात सज्जनों के लिए ये ब्रह्म सुखानुभूति हैं। क्या मतलब हुआ इसका? यहाँ श्री चक्रवर्ती का पाद का कहना है, श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं सताम शब्द का मतलब है कि ज्ञानी नाम, सताम अर्थात विदुषाम, विदुषाम ज्ञानी नाम। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद कहना चाहते हैं यहाँ सताम का मतलब केवल कोरे ज्ञानी नहीं है। कैसे ज्ञानी हैं ना, जो भक्त ज्ञानी हैं,
कहने का क्या मतलब हुआ, तत्र सताम भक्तिमत्वेन सच्छब्देन उच्यमानानाम ज्ञानिनाम। अर्थात श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है कि यहाँ जब हम सत शब्द से उनका उल्लेख करते हैं तो इसका यह मतलब हुआ उनमें भक्ति है, क्योंकि सत शब्देन उच्यमानानाम ज्ञानिनाम, अर्थात उस ज्ञानी को हम सत कह सकते हैं या संत कह सकते हैं जिनमें भक्ति का भी अंश हो, भक्ति का भी आचरण हो, या जिनमें भक्ति का भी कुछ हिस्सा हो। जो कोरे ज्ञानी होते हैं, जिनमें भक्ति का गंध नहीं होता है या जो भक्ति का आचरण नहीं करते हैं, उनको संत नहीं कह सकते हैं, केवल ज्ञानी को संत नहीं कह सकते हैं। भक्तिमत्वेन सच्छब्देन उच्यमानानाम, अर्थात ज्ञानी को सत तभी कहेंगे जब वो भक्तिमान होगा, ये चक्रवर्ती पाद का कहना है। सताम भक्तिमत्वेन सच्छब्देन उच्यमानानाम ज्ञानीनाम, ये ब्रह्म सुखानुभूति हैं। ब्रह्म सुखानुभूति हैं का मतलब है, अर्थात श्री कृष्णचंद्र भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं। ब्रह्म सुख और अनुभूति, अनुभूति का मतलब है चित्त, और ब्रह्म का मतलब है सत्य, और ब्रह्म सुख का मतलब है आनंद। अर्थात इन तीनों शब्द में, ब्रह्म सुखानुभूति, इन शब्दों में जो ब्रह्म का सच्चिदानंद स्वरूप की बात की जाती है, ज्ञानी लोग जिस सच्चिदानंद स्वरूप की बात कर रहे हैं वही हैं श्री कृष्णचंद्र भगवान, वही हैं नंदनंदन, ऐसा कहना है। वो कैसे ज्ञानी हैं न, जो सत्य ज्ञानी हैं। सत्य ज्ञानी का मतलब जो भक्तिमान ज्ञानी है, भक्ति सहित ज्ञानी है, भक्ति युक्त जो ज्ञानी है, कोरे ज्ञानी नहीं है, केवल ज्ञानी नहीं है। सच्छब्देन उच्यमानानाम ज्ञानिनाम ब्रह्म च तत् सुखम च अनुभूतिश्च तया सह इति। आगे श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, कृष्ण शरीरस्यैव ब्रह्मानुसुख भूतित्वम तेनैव सह तेषां विहारात्। अर्थात जो भक्तिमान ज्ञानी हैं वे भगवान नंदनंदन के शरीर को सच्चिदानंदमय मानते हैं। अर्थात जिस ब्रह्म को सच्चिदानंद कहा जाता है, सच्चिदानंदम ब्रह्म सदरूप चिद्रूप एवं आनंद रूप, वही स्वरूप भगवान कृष्णचंद्र का है, ऐसा ज्ञानी लोग मानते हैं। कौन ज्ञानी लोग मानते हैं न, जो लोग भक्तिमान ज्ञानी होते हैं वही मानते हैं। तो इसलिए कृष्ण शरीर से ब्रह्म सुखानुभूतित्वम, अर्थात कृष्ण ही खुद ब्रह्म सुखानुभूति हैं, और ब्रह्म सुखानुभूत्या अर्थात सच्चिदानंद विग्रहेण श्री कृष्णेन श्री नंदनंदनेन। तो ऐसा ज्ञानी लोग मानते हैं कि इन बालकों का भाग्य की क्या महिमा है, क्या वैशिष्ट्य है। ये साक्षात सच्चिदानंद घन विग्रह के साथ क्रीड़ा करते हैं। सच्चिदानंद घन विग्रह के पीठ पर कभी चढ़ जाते हैं, उसको कभी आलिंगन कर लेते हैं, एवं उसको कभी घोड़ा बना लेते हैं। ऐसा भी खेल खेल में कभी होता है। भगवान जब हार जाते हैं तो सखा लोग कहते हैं, भाई तुम हार गए हो, तुम घोड़ा बनो, तुम्हारे पीठ पर बैठेंगे। अर्थात क्या सौभाग्य है, क्या तपस्या इन लोगों ने की है, किस पुण्य पुंज का अर्जन इन लोगों ने किया है कि भगवान को खेल खेल में घोड़ा बना लेते हैं और भगवान के साथ इतना मित्रता के साथ व्यवहार करते हैं, इतना सख्यपूर्ण व्यवहार भगवान के साथ जो कर रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या पुण्य ऐसा किया है। तो ब्रह्म सुखानुभूत्या विजर्रुः तेनैव सह तेषां विहारात् तस्मात् तदाकारस्य प्राकृतत्वम् आचक्षाणाः ज्ञानिमानिनः अन्ये सच्छब्देन नैव उच्यन्ते इति ज्ञेयम्। ये बहुत बड़ी बात श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। जो लोग भक्ति परायण ज्ञानी नहीं हैं, जो लोग भक्तिमान ज्ञानी नहीं हैं,
उनको हम लोग सत्य नहीं कह सकते हैं, वे सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? उनमें क्या कमी है? ना भगवान जो सच्चिदानंद घन विग्रह हैं, जो नंदनंदना सच्चिदानंद घन विग्रह हैं, उनके शरीर को भी मायिक मानते हैं, अर्थात माया सृष्ट मानते हैं। ऐसे जो ज्ञानी, ऐसे भी कुछ ज्ञानी हैं जो भगवान के सच्चिदानंद विग्रह को अर्थात नंदनंदन के शरीर को मायिक मानते हैं। इसलिए तस्मात् तदाकारस्य प्राकृतत्वम आचक्षाणः, अर्थात जो लोग तदाकार को अर्थात नंदनंदन के स्वरूप को, नंदनंदन के श्री विग्रह को, उनके शरीर को प्राकृतत्वम आचक्षाणः कहते हैं, ये भगवान का शरीर प्राकृत है। ऐसे जो ज्ञानी मानी हैं वे ज्ञानी नहीं है। श्री चक्रवर्ती पाद की भाषा में वे ज्ञानी नहीं है जो नंदनंदन के शरीर को, भगवान कृष्णचंद्र के शरीर को प्राकृत मानते हैं। वे ज्ञानी मानी हैं, अर्थात ज्ञान का गुमान उनमें भरा है, अहंकार भरा है। इसलिए सच्चिदानंद विग्रह को, नंदनंदन को ये क्या कहना चाहते हैं कि ये प्राकृत हैं। तो ऐसे जो ज्ञानी मानी हैं वे सच्छब्देन नैव उच्यन्ते इति ज्ञेयम्। चक्रवर्ती पाद का कहना है कि हमारी दृष्टि से वे लोग तो सत्य नहीं हो सकते हैं। इसलिए श्लोक में जो कहा गया है इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, यहाँ सत शब्देन उन ज्ञानियों की बात की गई है जो ज्ञानी भक्त भी हैं, जिनमें भक्ति का भी संचार है। ऐसे लोगों को, ऐसे ज्ञानियों को सत शब्द से कहा गया है। तस्मात् तदाकारस्य प्राकृतत्वम आचक्षाणः ज्ञानिमानिनः अन्ये सच्छब्देन नैव उच्यन्ते इति ज्ञेयम्। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन। दास्यम गतानाम, इसका यह मतलब हुआ केवल भक्ति मताम सताम, अर्थात जो भगवान के प्रति केवल भक्तिमान है, अर्थात भगवान के जो अनन्य भक्त हैं उनके लिए भगवान सच्चिदानंद तो है ही हैं, लेकिन वो परदैवत हैं। भगवान का श्री विग्रह उनके लिए भी सच्चिदानंद तो है, लेकिन उनके विशेष बात यह है कि भगवान उनके लिए परम दैवत हैं, अर्थात सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। भगवान से बढ़कर के, भगवान नंदनंदन से बढ़कर के कोई और श्रेष्ठ देवता नहीं है। दास्यम गतानाम परदैवतेन, अर्थात दास्यम गतानाम का मतलब है केवल भक्ति मताम सताम परदैवतेन इष्ट देवेन इति। तदानींतना ब्रजस्थ जन भिन्ना प्रायो दास भक्ता एव इति त एव निर्दिष्टा। श्री चक्रवर्ती पाद यह भी सावधान कर रहे हैं, ब्रजवासी जो थे वे भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन उनकी बात नहीं की जाती है। वे भगवान नंदनंदन को तो देवता ही नहीं मानते हैं, परदेवता मानने की बात तो दूर रही। तो इसलिए दास्यम गता नाम, अर्थात जो शुद्ध भक्त हैं या जो केवल भक्तिमान हैं, वे कौन हैं ना? वे हैं ब्रजस्थ जन भिन्ना, अर्थात ब्रजवासियों को छोड़ करके जो और अन्य भक्त हैं, अर्थात भगवान के जो गोपवासी हैं, भगवान के जो संबंधी हैं, या गोप में वृंदावन में रहने वाले भगवान के जो भक्त हैं, उनको छोड़ करके, क्यों? वे भगवान को पर दैवता मानते ही नहीं, वो दैवत ही नहीं मानते हैं, भगवान को देवता नहीं मानते हैं, भगवान को ईश्वर नहीं मानते हैं, नंदनंदन को, यशोदानंदन को ईश्वर मानते ही नहीं। इसीलिए परदैवत किसके लिए है ना? दास्यम गताना, अर्थात जिन लोगों ने भगवान की दासता को स्वीकार किया है, ऐसे कौन है ना? ब्रजस्थ भिन्न जनाना, ब्रजस्थ जन भिन्ना प्रायः दास भक्त एवं। उसमें भी कुछ ऐसे भी भक्त होंगे जो
जिनका दास्य भक्ति ना हो करके सख्य माधुर्य या वात्सल्य आदि भक्ति हो सकती है। इसीलिए कहते हैं प्रायः, अर्थात ब्रजवासियों को छोड़ करके, वृंदावन वासियों को छोड़ करके, और जो भगवान के दास भक्त हैं उनके लिए तो नंदनंदन श्याम सुंदर जो भक्त ज्ञानियों के लिए सच्चिदानंद विग्रह हैं, वे ही उन भक्तों के लिए परम दैवता हैं, पर देवता हैं। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन। तो दास भक्ता एव इति तएव निर्दिष्टा। और मायाश्रितानां नरदारकेण, भगवान को देखने की दृष्टि ज्ञानी की दूसरी है, अर्थात जो भक्त ज्ञानी होता है वो भगवान को सच्चिदानंद विग्रह मानता है, और जो भगवान के दास भक्त होते हैं, ब्रजवासियों को छोड़ करके जो भक्त होते हैं, वे भगवान को परम दैवत मानते हैं। लेकिन जो मायाश्रित हैं, मायाश्रित शब्द की व्याख्या करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं वैषयिकम सुखम आश्रितानाम, अर्थात जिन लोगों ने विषय सुख को अर्थात सांसारिक सुख को आश्रय कर लिया है। जैसे भक्त लोग भगवान को आश्रय करते हैं, ज्ञानी लोग ब्रह्म को आश्रय करते हैं, वैसे कुछ लोग संसार में ऐसे भी हैं जो सांसारिक सुख को ही अवलंबन करते हैं, अर्थात यही हमारा जीवन का ध्येय है, इसको छोड़ करके हमको दूसरा ना कुछ करना है ना कुछ सुनना है, विषय सुख ही उनके लिए सर्वस्व है। तो ऐसे जो मायाश्रित हैं अर्थात वैषयिकम सुखम आश्रिता नाम, ऐसे कौन होते हैं ना, ऐसे लोग कर्मी होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक, क्योंकि उनको विषय सुख चाहिए, जिनकी संख्या आजकल के समाज में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लोग यही मानते हैं कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक यह शरीर है तब तक भोग करो, इसको छोड़ करके संसार में कोई अच्छी चीज और है ही नहीं। तो इस तरह से जो लोग मायाश्रित हैं अर्थात विषय सुख को आश्रित हैं, ऐसे जो कर्मी हैं, उनकी दृष्टि में ये जो नंदनंदन है ये तो नरदारक है। नरदारक अर्थात नर बालक है, ये तो सामान्य बच्चा है, सामान्य बालक है, यह गोप बालक है। मायाश्रितानां नरदारकेण अर्थात प्राकृत मनुष्य बालतया प्रतीयमानेन कृष्णेन, अर्थात भगवान श्री कृष्ण 3 तरह से प्रतीयमान होते हैं। जो लोग भक्त ज्ञानी हैं अर्थात भक्तिमान जो ज्ञानी हैं, उनके लिए तो भगवान ब्रह्म सुखानुभूति हैं अर्थात सच्चिदानंद विग्रह हैं। और जो लोग दास्यम गत हैं अर्थात जो लोग भक्त हैं, उनके लिए तो देवता हैं, परम देवता हैं, परम आराध्य हैं। और जो लोग कर्मी हैं, जिन्होंने विषय भोग को अपना सर्वस्व बना रखा है, उनके लिए भगवान नरदारक हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं अर्थात ऐसे जो नंदनंदन है, जिनको ज्ञानी लोग दूसरी दृष्टि से देखते हैं, भक्त लोग दूसरी दृष्टि से देखते हैं, एवं कर्मी लोग दूसरी दृष्टि से देखते हैं, ऐसे भगवान के साथ ये बीजर्षु अर्थात इन्होंने बाल्य लीला की, भगवान के साथ से विभिन्न क्रीड़ाएं की, भगवान के साथ बहुत दिन तक इन बच्चों ने, इन गोप बालकों ने क्रीड़ा की, खेल खेला। तो कृष्णेन सह एते बीजर्षु इति ज्ञानिनां तदनुभव एव न तो तेन सह विहार। देखिए, ज्ञानी लोग जो भगवान को सच्चिदानंद विग्रह मानते हैं, तो मान करके वो कर क्या पाते हैं, उनको भगवत सुख कितना मिलता है? कहते हैं उनको इतना ही मिलता है, उनको केवल अनुभव होता है कि ये सच्चिदानंद विग्रह हैं। इसको छोड़ करके वो कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे किसी रसगुल्ले के दुकान में, मिठाई के दुकान में हम जा कर के
रसगुल्ले का दर्शन करें और दर्शन करके हम यह समझें कि यह बहुत अच्छा रसगुल्ला है, बहुत बढ़िया रसगुल्ला है, बहुत फ्रेश रसगुल्ला है, तो उससे क्या फायदा होगा? फायदा तो यही होगा उसको लेकर के उसका आस्वाद लिया जाए। तो ज्ञानी लोग भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप है उससे, उसके आस्वाद से वंचित हो जाते हैं। उनको केवल अनुभव हो जाता है, इतना नॉलेज उनको होता है कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। वो भी कोरे ज्ञानियों को नहीं, जो लोग भक्त ज्ञानी हैं उन्हीं को होता है, लेकिन उनको इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं हो सकता है। तो विजयहृदिति ज्ञानिनाम तदनुभव एवं न तो तेन सह विहार। लेकिन भगवान के साथ विहार तो नहीं कर पाते हैं, केवल इतना उनको अनुभव होता है कि ये सच्चिदानंद विग्रह हैं। किंतु और जो भक्त लोग होते हैं, भक्त का मतलब देखिए श्री चक्रवर्ती पाद यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि वृंदावन वासियों का, गोपवासियों का जो सौभाग्य है वो सौभाग्य किसी और भक्त को भी नहीं है। ज्ञानी को तो नहीं ही है, कर्मी को तो है ही नहीं, लेकिन दूसरे भक्तों को भी ऐसा सुयोग, ऐसा सौभाग्य, ऐसा अवसर नहीं मिला। क्यों? न भक्तानाम गौरवेण तद भजनमेव न तो विहार योग्यता। अर्थात भगवान के जो ब्रजमंडल को छोड़ करके, वृंदावन को छोड़ करके बाहर जो भक्त हैं वे लोग तो भगवान का भजन ही करते रह गए, केवल भगवान का कथा श्रवण करते रह गए, भगवान का नाम कीर्तन करते रह गए, भगवान की सेवा शुश्रूषा करते रह गए। भगवान के साथ क्रीड़ा करने का, भगवान के साथ विहार करने का, भगवान के साथ व्यक्तिगत जो संपर्क है उस तरह के संपर्क को स्थापन करने का सौभाग्य उनको भी नहीं है। इसलिए ब्रजवासियों का जो महात्म्य है, उनका जो सौभाग्य है, उसकी वर्णना नहीं की जा सकती है। तो भक्तानाम गौरवेण तद भजनमेव न तो विहार योग्यता, कर्मिणाम तो न तदनुभव प्रीत्यभावा न तद भजनमपि। और कर्मियों की क्या दुर्दशा है? कर्मी लोग न तो अनुभव कर सकते हैं कि ये सच्चिदानंद विग्रह, ये भगवान है, इस तरह का अनुभव तो उनको होता ही नहीं है। और अनुभव जब नहीं होता है तो उनका भजन वो क्या करेंगे? अर्थात उनको कोई लाभ नहीं होता है, केवल विषय भोग को छोड़ करके उनको दूसरा संसार में कोई लाभ नहीं होता है। अगर भगवान हैं ऐसा अनुभव हो और ये हमारे इष्ट देव हैं, ये हमारे परम देवता हैं, इस तरह का अनुभव तो उसका भजन वो करे, लेकिन उसको इन अनुभव से कोई भी अनुभव नहीं होता है, इसलिए वो भजन भी नहीं कर पाता है। कर्मणाम तो न तदनुभव प्रीत्यभावात न तद भजनमपि। तो भगवान का अनुभव उनको नहीं होता है और भगवान के प्रति प्रीति न होने के कारण वे भगवान का भजन भी नहीं करते हैं। कुतः तेन सह विहारः, वे भी विहार कैसे कर सकते हैं? अर्थात वृंदावनवासी जो भगवान के अंतरंग व्यक्ति हैं, जो वृंदावन में रहते हैं, उनको छोड़ करके दूसरे ज्ञानी भी हों या भक्त भी हों, उनको ऐसा सौभाग्य कतई प्राप्त नहीं होता है, कभी भी प्राप्त नहीं होता है। कुतः तेन सह विहार इति एते तु विजह्रुः विहारैहि तम स्वानंद परिपूर्णमपि प्रेम विलासमयम् आनंद विशेषम प्रापय्य एव स्वयमपि सर्वतो विलक्षणम आनंदुरित्यर्थः। बहुत सुंदर ढंग से श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, भगवान के साथ इन गोप बालकों ने विहार तो किया ही, और भगवान जो आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उनको आनंद विशेष प्रदान कर रहे थे। अर्थात केवल भगवान को, भगवान जो साक्षात आनंद कंद हैं, नित्यानंद स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, उनको भी ये गोप बालक आनंद प्रदान कर रहे हैं। विहारे ही तम स्वानंद परिपूर्णमपि, अर्थात भगवान नंदनंदन स्वानंद परिपूर्ण है, अपने आनंद से भगवान कूट कूट करके भरे हुए हैं।
लेकिन ऐसे जो भगवान हैं उनको भी प्रेम विलासमयम आनंद विशेषम, अर्थात प्रेम से भगवान के साथ उनका जो व्यवहार है, उनका जो क्रीड़ा है, ऐसा आनंद भगवान को अकेले में प्राप्त नहीं होता है, चाहे भगवान आनंद कंद क्यों न हो। तो इस तरह का आनंद, आनंद कंद को भी, आनंद स्वरूप को भी ये गोप जना, गोप बालक आनंद प्रदान कर रहे हैं। केवल आनंद प्रदान कर रहे हैं इतनी ही बात नहीं, आनंदम प्राप्य एवं स्वयमपि सर्वतो विलक्षणम आनंदु, खुद भी ऐसा विलक्षण आनंद प्राप्त करते हैं जो आनंद भगवान को इन बाल लीलाओं के साथ, बाल लीलाओं के द्वारा प्राप्त हो रहा है, वही आनंद समस्त ब्रजवासियों को, गोप बालकों को भी प्राप्त हो रहा है। अतः सर्वेभ्यः सकाशात् एते एव कृत पुण्याः इति किं वक्तव्यम कृत पुण्य पुंजाः एव। अर्थात श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, क्या ऐसा, क्या हम कैसे कहें कि ये कृत पुण्य है, अर्थात इनका पुण्य भारी मात्रा में है, इसलिए उनको कहा गया है कृत पुण्य पुंजाः। एते कृत पुण्याः ऐसा न कह करके इनको कहा गया कृत पुण्य पुंजाः, अर्थात इन लोगों ने तो पुण्य का पुंज, पुण्य का ढेर, अर्थात पुण्य का पर्वत तो इनके पास है, उस पुण्य पुंज के द्वारा ये भगवान के साथ इस तरह की विविध क्रीड़ाएं कर रहे हैं। आगे श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि यह जो कहा गया कि इन ब्रजवासियों का पुण्य पुंज बहुत बड़ा है, अत्यधिक पुण्य है, इसलिए भगवान के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, ये लोक प्रतीत्या एवं, अर्थात ये एक लौकिक दृष्टि से यह बात कह गई है, कही जा रही है, क्योंकि पुण्य पुंज लोक प्रतीत्या एवं उक्ति न तो नित्य सिद्धानां तेषां, क्योंकि ये भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं। जब जब भगवान अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं, अवतार लेते हैं, तब तब भगवान के ये नित्य भक्त, नित्य सिद्ध भक्त भगवान के साथ लीला करते हैं। ये कोई पुण्य से भगवान के साथ उनको लीला करने का अवसर मिला है, ऐसा कहना गलत है। लेकिन फिर भी कृत पुण्य पुंजः यह जो कहा गया है ये लौकिक दृष्टि से, क्योंकि ये नित्य सिद्ध हैं। अतः निखिलेभ्यः ज्ञानेभ्यः भक्तेभ्यश्च उत्कृष्ट तमानां तत्र प्राचीन पुण्यवत्वं वस्तुतो हेतुरिति ज्ञेयम्। अर्थात निखिलेभ्यो ज्ञानेभ्यः भक्तेभ्यश्च उत्कृष्टतमानां तत्र न प्राचीन पुण्यवत्वं वस्तुतः ज्ञेयम्। अर्थात जो भक्तों से भी उत्कृष्ट हैं और भक्तों से, ज्ञानियों से भी उत्कृष्ट हैं, उनका पुण्य पुंज भगवान के साथ क्रीड़ा करने का हेतु है, ऐसा कहना गलत है। आगे श्री चक्रवर्ती पाद एक दूसरी व्याख्या दे रहे हैं। यहाँ पुण्य शब्द का ऐसा अर्थ हम लोग कर सकते हैं, पुण्य शब्देन भगवत प्रियाचरणम वा लक्षणीयम। यहाँ पुण्य का अर्थ है भगवान की प्रीति के लिए इन लोगों ने जो सब अनुष्ठान किया है, क्योंकि भगवान के जो नित्य भक्त होते हैं या साधन सिद्ध भक्त होते हैं, वे भगवान के प्रीति के लिए निरंतर कुछ न कुछ आचरण करते हैं, भगवान को प्रीत करने के लिए ये भक्ति करते हैं। तो इसीलिए पुण्य शब्देन भगवत प्रियाचरणम वा लक्षणीयम, अर्थात भगवान की प्रीति को बढ़ाने के लिए ये लोग जो जो आचरण करते हैं, जो जो भक्ति करते हैं, जो जो क्रियाएं करते हैं, वे सब पुण्य शब्द से विवक्षित हैं। ऐसा पुण्य इन गोपवासियों का भी है। तद वशीकारातिशय रूप प्रयोजन लाभ है। ऐसा क्यों करते हैं? अर्थात जो लोग नित्य सिद्ध हैं या साधन सिद्ध हैं, जिनको भगवान को प्राप्त करने के लिए पुण्य की आवश्यकता नहीं है, तो वे भी भगवान की सेवा क्यों करते हैं? श्री चक्रवर्ती बात कर रहे हैं, तद वशीकारातिशय रूप प्रयोजन लाभाय, भगवान को अपने वश में करने के लिए, अर्थात भगवान को अपने अधीनस्थ कर लेते हैं, भगवान को अपनी सेवा प्रदान करके, भगवान की सेवा करके, भगवान की प्रिय आचरण करके, भगवान को सुख देने वाली क्रिया करके
भगवान को वो अतिशयित वशीभूत कर रहे हैं। तो इसलिए गोपवासियों का, वृंदावन वासियों का भाग्य किसी भी देवता को, किसी भी ब्रह्म रुद्रादि को भी संभव नहीं है। ये अत्यंत दुर्लभ एक सौभाग्य है जो किसी को भी, न किसी ज्ञानी को न किसी भक्त को प्राप्त हो सकता है। इस तरह की व्याख्या श्री चक्रवर्ती पाद इस श्लोक के लिए कर रहे हैं। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरबालकेन साकं विजर्षु कृतपुण्यपुञ्जाः। तो भगवान की कृपा से जो कुछ भी समझ में आया एवं आप सबकी सहृदयता, आप सबके आशीर्वाद एवं आनुकूल्य से भगवान की यह दिव्य कथा हम लोगों को कहने सुनने का अत्यंत सुअवसर प्राप्त है। इसलिए सभी के चरणों में बारंबार कृतज्ञता ज्ञापन पूर्वक प्रणामांजलि निवेदन करते हुए आज की कथा का हम विराम करते हैं। भगवान की कृपा से आगे की कथा का श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त